नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप हैं जॉइन फॉर एजुकेशन के लाइव क्लास में। नमस्कार, आई एम आनंद एंड you are in the live class of the Join for Education. Today we are going to study about surface areas and volumes. This is one of the most important chapter of mathematics class 9. Let's start the class without any delay, and I have Mr. Sir, my name is Dhairy Kumar Soni. आज के लाइव क्लास में मेरे साथ धैर्य कुमार सोनी है और उन्हीं के रिक्वेस्ट पर यह क्लास आज अरेंज किया गया है। उन्हीं के द्वारा यह टॉपिक सेलेक्ट किया गया है इस चैप्टर को, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, और ये सीबीएसई बोर्ड में स्टडी कर रहे हैं। तो सीबीएसई बोर्ड में इन दिनों सिलेबस को एवरेज कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है। तो आज हम लोग कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। सो आई एम गोइंग टू ओपन द बुक। मैं बुक को ओपन करने जा रहा हूँ। आई हैव ओपन द बुक। मैं पुस्तक को खोल दिया हूँ। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, और आज हम लोग स्टडी करेगा सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन। First of all, we try to understand what is the surface area of a right circular cone. And first of all, we want to know what is the cone. सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन होता क्या है। तो let's see the figure of the cone which help us to identify a cone. These four figures helps us to identify a cone. So see the cursor, A, B, C and D. Here four figures. If we put at a gallons in the A, in the B, in the C and in the D. So if we see here, then CB is the radius of the cone and CA is the salient height of the cone and AB is the height of the cone. So note down, if we put at a gallons in the figure A, then CB clear the radius of the cone, CA or AC clear the salient height of the cone and AB clear the height of the cone. तो हम लोग फिगर ए को देखते हैं। तो फिगर ए में CB कॉन के रेडियस को बताता है, CA या AC कॉन के सैलेंट हाइट को बताता है और AB जो है कॉन के हाइट को बताता है। तो hope that there is no problem to identify radius, salient height and height of a cone. अगर एक कोन दिया है तो ये सैलेंट हाइट, रेडियस और हाइट क्या होगा, हमको इसको पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वैभव कुमार, हैव यू एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट को No, sir. देयर इज नो प्रॉब्लम। वेरी गुड। इफ यू पुट एट ए गैलेंस इन द फिगर बी, यदि हम लोग फिगर बी पर एक थोड़ा सा झलक, एक नजर डालते हैं, देन सी डैश clear the diameter of the cone. If you put at a gallons BA and written here a small h, with the help of the small h, we denote the height of a cone. If we put at a gallons in C, then we have R and H. R clear the, or with the help of the R we denote the radius of a cone. And if we find out the relation between CB, CA and AB according to the figure B
और अकॉर्डिंग टू द फिगर सी, CB is the R and AB is the H, and the angle between CB and AB is 90 degree, or in other words angle CBA equal to 90 degree. अगर हम लोग पहला फिगर ए को देखते हैं तो AB आपको H को बता रहा है, CB आपको रेडियस को बता रहा है, और एंगल CBA जो है आपका 90 डिग्री है. सो ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. तो अगर ABC को देखें तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल के जैसा हो जा रहा है. It means that in a right angle triangle, if we have perpendicular and base, then we have no problem to find out the value of hypotenuse or H. So here salient height CA is the salient height for the cone. So here L equal to R square plus H square over root. L equal to R square plus H square over root. So we have the value of R equal to L square minus H square over root. So the value of H equal to L square minus R square over root. तो अगर इस फिगर को देखें तो आपका एंगल CBA 90 डिग्री है, AB H है और CB आपका R है. तो आपका CA जिसको हम लोग सैलेंट हाइट बोल रहे हैं, या हिंदी में बोले तो तिरछी ऊंचाई बोल रहे हैं, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं. सो L इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर ओवर रूट. सो R इक्वल टू हो जाएगा L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर ओवर रूट, और H इक्वल टू हो जाएगा L स्क्वायर minus R square over root. Once again I am repeating this one. CB radius of the cone, AB height of the cone, and CA or AC salient height of the cone. Today we solve some questions of exercise 11.1. 11.1 के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे. All questions of exercise 11.1 related to the curved surface area of a cone or total surface area of a cone. So curved surface area of a cone, if we put at a gallons in the figure which is in the right hand side, ये राइट हैंड साइड में आपको जो फिगर दिख रहा है, अगर इसमें हम लोग एक नजर डालें तो ये आपका H है, ये आपका R है और ये आपका L है. L को हम लोग सैलेंट हाइट बोलते हैं, H को हाइट बोलते हैं, R को रेडियस बोलते हैं. तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है आपका हो जाएगा पाई RL. सो नोट डाउन दिस वन, इसको आप नोट कर लीजिए. कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इक्वल टू 1/2 into L into 2 pi R equal to pi R L. Here R is the radius and L is the salient height. And already I have discussed about L square equal to R square plus H square. Therefore, L equal to R square plus H square over root. Note down this formula. So if we put at a gallons in this figure, then top or base of a cone is just like the circle. तो यहाँ पर देखें तो कौन का ये टॉप लग रहा है, लेकिन इसको हम लोग बॉटम भी बोलेंगे यदि इसको रिवर्स कर देते हैं.
या उलट देते हैं तो ये पार्ट जो है एक सर्कल है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। बेस ऑफ ए कॉन इज ए सर्कल। लेट्स सी हियर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन। सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन is pi rl plus pi r square equal to, we take pi r as the common here, so pi r whole star l plus r equal to total surface area of a cone. So we have two area of a cone. First one is the curved surface area, which is just equal to the pi rl, and total surface area, which is just equal to the pi r whole star l plus r. आपने ये दोनों फार्मूला को नोट किया? Yes, sir. चलिए, you have noted these two formula. These two formula we need during the solution of the questions of exercise 11.1. जब हम लोग एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, उस समय हमको ये दोनों ही फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। सो द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलता है CSA। C फॉर कर्व, S फॉर सरफेस एंड A फॉर एरिया। टोटल सरफेस एरिया को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलता है TSA। सो T फॉर टोटल, S फॉर सरफेस एंड A फॉर एरिया। So for total surface area we do write TSA, and for the curved surface area we do write CSA। ठीक है, तो CSA इक्वल टू आपका पाई आर एल और TSA इक्वल टू पाई आर होल स्टार एल प्लस आर। हैव यू एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड these two formulas? No, sir. There is no problem. Here R is what? यहाँ पर R क्या है? Radius. Here L is what? Slant height. Slant height. And here H is what? Sir, height मतलब perpendicular. अगर ये दो फार्मूला पर अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ H का जरूरत पड़ा क्या? No, sir. दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। CSA में भी हमको H का जरूरत नहीं पड़ा और TSA में भी हमको H का जरूरत नहीं पड़ा। पाई R और L, R और H में क्या रिलेशन है? सो दिस इज द रिलेशन L इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर ओवर रूट। दिस इज द रिलेशन बिटवीन L, R एंड H। अगर हमको H और R दिया हुआ है तो हमको L फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हमको R और H दिया हुआ है तो L फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर हमको L और H दिया हुआ है तो R फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और यदि हमको L और H दिया हुआ है तो R फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सो these three are interrelated to each other। इस तरह से ये तीनों L, R, H जो है इंटर रिलेटेड है। अगर इन तीनों में से कोई दो दिया हुआ है तो तीसरा फाइंड आउट करने की हमको बहुत आसानी हो जाएगी और दिक्कत नहीं होगा। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन of this exercise. Before we see the first question of the exercise 11.1, we also try to know about what is the relation between diameter and radius of a cone। एक कोन के डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, D इक्वल टू 2R और R इक्वल टू D/2। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। सर एक बार फिर से बोलिए। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस एंड रेडियस इक्वल टू डायमीटर इंटू 1/2 और 1/2 इंटू डायमीटर।
ठीक है, तो इट मीन्स दैट Yes, हमको sir. हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। ठीक है, लिख Yes, लिया, sir. नोट डाउन कर लिया। Yes, sir. चलिए, तो लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.1। Diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its salient height is 10 centimeter. Find its curved surface area। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमको ये पूछा जा रहा है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर सॉल्यूशन। आप सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख दीजिए। इसके बाद फ्रॉम क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट इस प्रश्न को पढ़ने के बाद ये स्पष्ट पता चल जाता है कि यहाँ पर डायमीटर आपका 10.5 सेंटीमीटर है। सैलेंट हाइट, जिसको हम लोग जनरली एल से डिनोट करते हैं, आपका 10 सेंटीमीटर है। तो राइट डाउन हियर फॉर डायमीटर वी राइट डाउन हियर डी। डायमीटर के लिए डी लिख देते हैं 10.5 सेंटीमीटर। फिर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सैलेंट हाइट के लिए एल लिखते हैं। एल इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर है। सी एस ए यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड आउट कीजिए। सी एस ए, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ही पूछ रहा है। सो दिस इज द एग्जैक्ट डाटा। ये आपका एग्जैक्ट डाटा हो गया जो आपको क्वेश्चन से मिला। कुछ क्वेश्चंस में रिलेवेंट फिगर भी ड्रॉ करने का जरूरत होता है, तो इस क्वेश्चन में रिलेवेंट फिगर का जरूरत नहीं है। अब हम लोग सी एस ए या कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला को यहाँ पर रिकॉल कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो हमको यहाँ पर जरूरत पड़ेगा पाई आर एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कर्व सरफेस एरिया एंड वी नीड हियर आर एंड एल। हमको यहाँ पर आर और एल का जरूरत पड़ेगा। एंड वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस, सो द रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पहले आप फाइंड आउट कीजिए आर इक्वल टू डी बाय 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ डी। जब आप यहाँ डी का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हियर आर इक्वल टू 10.5 बाय 2। अगर आप 10.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5.25। सो वी हैव पाई आर एंड एल। नाउ वी रिकॉल द फॉर्मूला सी एस ए इक्वल टू पाई आर एल। सो सी एस ए इक्वल टू पाई आर एल, आपका सी एस ए इक्वल टू पाई आर एल। यहाँ फॉर्मूला को रिकॉल कर लिए। आप पाई का वैल्यू यहाँ बोल रहा है 22/7, आप पुटअप कर दीजिए। फिर आर का वैल्यू आपका 5.25 है, उसको पुटअप कर दीजिए। और एल का वैल्यू आपका 10 सेंटीमीटर है। आफ्टर द प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ सी एस ए। एक छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद हमको सी एस ए का वैल्यू आ जाएगा। लेट्स सी हियर इन द नेक्स्ट पेज। Now putting the value of
pi r and l. So here will be C S A equal to 22 into the value of r is 5.25 into the value of L is, see here, the value of L is 10 centimeter. Now we find out the multiplication, or C S A equal to, so here will be by 7. So after the multiplication and division of this one, or after the mathematical calculation of this one, we get the CSA of the given question. So after the proper multiplication and division, we get here 1, 6, 5 centimeter square. So this is the answer of this question. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका यही हो जाएगा. Hope that there is no problem to understand the solution of this question. Once again, I am going to repeat this one. So this is the question. Diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its salient height is 10 centimeter. Find its curved surface area. Solution from question, it is clear that D equal to 10.5 centimeter, L equal to 10 centimeter, and CSA or curved surface area equal to what? And we know that R equal to D by 2. So we putting the value of D, then we get here R equal to 10.5 by 2 equal to 5.25. Now I have recalled the formula of CSA, here pi RL. Now putting the value of pi r and l, so the value of pi is 22, this is the 22 and by 7, and this is the value of r 5.25, and this is the value of l. After the multiplication and division, we get here CSA equal to 165 centimeter square. So this is the answer of the first question. Let's see the next question. So let's see the second question of this exercise 11.1. Find the total surface area of a cone if its salient height is 21 meter and the diameter of its base is 24 meter. This question is also very easy. ये भी question काफी आसान है. First of all, we make a data. एक data prepare करेंगे from question. So first of all, we write down from question. It is clear that here L equal to 21 and D equal to 24 centimeter. So I am going to write down here solution, and from question it is clear that, let's see here, L equal to 21 centimeter and diameter of the base of the cone equal to 24 centimeter. We know that R equal to D by 2. Now putting the value of D,
value of d. Then we get here r equal to the value of d is 24 by 2. Then we get here 12 centimeter. So see here. Now we recall the formula of TSA or total surface area. Total surface area of a cone equal to, we write down here, pi r L plus r. So this is the formula of the total surface area. It is also written as TSA, pi r whole square r plus L. So now putting the value of above pi r and L. So here will be TSA. This is the short form of the total curved surface area which is asked in this question. Pi is 22 by 7, therefore we write down here 22 into the value of r is 12. I have written here 12. Whole square, the value of r is 12 plus the value of L is 21. So we write down here 21 whole closed by 7. However, there is no problem to understand at this step. इस स्टेप को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. So the next step will be or TSA equal to 22 into 12 into 12 plus 21 equal to 33 by 7. Or here TSA equal to, after the multiplication and division we get here. So we get here, तो हमको यहाँ पर गुना और भाग करने के बाद मिलता है 1244.57 centimeter square. This is the answer of this question. तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न के हल को या सॉल्यूशन को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. इतना इजी प्रश्न था कि मतलब इसके मतलब फॉर्मूला को रिकॉल किए हैं और क्वेश्चन में हमको जो जो दिया है उसका एक डाटा प्रिपेयर कर लिया है. सो लेट्स सी. देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स सैलेंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर. सो यहाँ राइट डाउन, यहाँ सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर मीटर ही लिखना होगा. सो हियर विल बी मीटर एंड यहाँ भी आपका डी का वैल्यू मीटर में ही आएगा. एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2. सो यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 मीटर. अब देखिए टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला को यहाँ रिकॉल कर लिया गया है, वैल्यू पुटअप कर दिया गया है और यहाँ पर आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर. ये आंसर हो जाएगा. तो हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम to understand the solution of the question number 1 and 2. Rest question we shall do in the next class. अगले क्लास में हम लोग शेष प्रश्नों को हल करेंगे. Till then, thanks to all of you.
Thank you very much to join me, and hope that this class will be useful to other schooling student of class 10 of CBSE and JAC board and other state board as well as ICSE बोर्ड। तो ये आप लोगों के साथ साथ अन्य विद्यार्थियों के लिए ये उपयोगी होगा जो CBSE, जैक या ICSE या फिर अदर स्टेट बोर्ड में है। तो once again I thanks to all of you and wait for the rest question for wait next class. Thank you very much.